class 11th and class. I hope you all are doing great, and we'll be moving forward with lesson number 2 of economics, right? Class 11th economics. So the name of the chapter is basic concept of economics. We are doing it, basic concept of economics we are doing, and before this we have done the first chapter, and in this chapter the title, the topics we have covered is consumer and we have covered utility, right? Today we'll be moving forward with total utility and marginal utility. So I told you about utility. I told that power of a commodity to satisfy a person, right? Power of a commodity to satisfy a person is known as what? Utility. Utility could be of different types. Utility could be of different types. You have form utility, then you have a place utility, knowledge utility, time utility, you have possession utility, you have, right? Now basically the power of a commodity to satisfy human is known as utility. Utility cannot be measured, utility only can be compared. Utility is subjective, it's not absolute. Utility is different from usefulness. There are many things about utility which I told you yesterday. Today we are going to do further. We'll be moving forward with what is utility. This we have done. Today we'll be doing marginal utility and total utility. So let's start with total utility. What does total utility means? Total utility means total satisfaction that a consumer gets from the consumption of total commodity. So basically the all commodity available with you, उसको यूज करने के बाद कितनी आपके पास क्या बचती है? यूटिलिटी. आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है? सी अलग अलग कमोडिटी से अलग अलग तरह की यूटिलिटी मिलती है. सो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, राइट? या तो आप दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो. टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. Another definition, total utility refers to total amount of satisfaction from commodity consumed, amount of commodity consumed. Now understand this. वो कह रहे हैं कि आपके पास जितनी भी कमोडिटी है, सपोज आपके पास 5 मैंगो हैं, आपके पास जितने भी मैंगोज है उन सारों को खाने के बाद, उन सारों को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो टोटल यूटिलिटी है. अगर आपके पास 5 मैंगोज है तो यहाँ पे हम पूरे 5 मैंगो के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे 1 या 2 मैंगो के बारे में बात नहीं करेंगे, हम विल टॉक ऑल द 5 मैंगोज. सो टोटल यूटिलिटी बेसिकली क्या कहती है? टोटल यूटिलिटी में 2 डेफिनेशंस लिखी है, आपको जो कंफर्टेबल लिखती है आप वो समझ सकते हो. टोटल यूटिलिटी refers to total satisfaction that a consumer gets from the consumption of total commodity. आपके पास जितनी भी commodity है उससे आपको जितना भी satisfaction मिला है वो क्या है? total utility है, right? या total utility refers to total amount of satisfaction from amount of commodity consumed, right? अब मैं आपको इससे example से समझाते हैं आपको. Now, ठीक है, ये है total utility आपको समझाया. अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि क्या है ये. सी, ये है आपका, सपोज आपके पास जो कमोडिटी है वो मैंगो है, यूनिट ऑफ मैंगोज. हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ मैंगोज, जो हम मैंगोज खा रहे हैं. देन टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिल रही है? और यहाँ पे मार्जिनल
टेबल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। Right? So I'm explaining you what is total utility and what is marginal utility. With the help of an example, I can easily explain it to you. So total utility, आपने जो मैंगोज कंज्यूम करेंगे वो आप करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? How many mangoes do you have? You have how many mangoes? 5 mangoes with you. These are the 6 mangoes with you. Right? Now here you are not consuming any mango. ये पहली बार में आपने कोई भी मैंगो नहीं खाया। जब आपने कोई मैंगो नहीं खाया तो आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ना ही मार्जिनल यूटिलिटी मिली। ठीक है, अभी आपको इस टेबल से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बोथ द टोटल यूटिलिटी एज वेल एज द मार्जिनल यूटिलिटी। राइट? सो यूनिट्स ऑफ मैंगो इज 0, टोटल यूटिलिटी नथिंग, मार्जिनल यूटिलिटी नथिंग। राइट? नाउ फर्स्ट मैंगो, व्हेन यू कंज्यूम द फर्स्ट मैंगो यू गॉट व्हाट? द सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूटिल्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम शुगर को केजी में नापते हैं, ऑयल को या पानी को लीटर्स में नापते हैं, मतलब लिक्विड को हम लीटर्स में नापते हैं, सॉलिड को हम केजी में नापते हैं, अगर कोई लंबाई में कोई चीज हो, लेंथ को हम मीटर्स में नापते हैं, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलिटी को किस में नापेंगे? यूटिल्स में। ठीक है, यूटिल्स। हम केजी वेजी में नहीं नाप सकते, तो हमने एक तरीका अपनाया कि यूटिलिटी को यूटिल्स में नापेंगे। तो हमने जब फर्स्ट मैंगो खाया था हमें कितना का सेटिस्फैक्शन मिला? 10 मैंगोज का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, पहला मैंगो खाने पे आपको 10, या तो आप सिंपल तरीके से बोलो 10 का मजा आया आपको। फिर आपने दूसरा मैंगो खरीदा तो आपको कितने का मजा आया? 17 का मजा आया। अब तक आप कितने मैंगो खा चुके हो? अब तक आप 2 मैंगोज कंज्यूम कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंगो खाने पे आपको आया 21 का मजा। ठीक है, फिर आपको आया 22 यूटिल्स का मजा। आप बोलेंगे 22, 21 क्या है? तो ये हमारे नापने का तरीका है यूटिलिटी को। यूटिलिटी को नापने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। वी डो नॉट हैव मेजरिंग रॉड, वी कैन नॉट काउंट और मेजर इट इन यूटिल्स, इन मीटर्स, किलोग्राम्स, ग्राम्स, लीटर्स। वी आर जस्ट मेजरिंग इट इन यूटिल्स, राइट? एंड व्हेन यू हैड योर फिफ्थ मैंगो, you again got a utility of 22 mangoes, and in the last you got utility of 19 mangoes, right? So here try to understand first. हम पहले इतना ही समझेंगे। See, you can check out that you have 6 mangoes with you. These are the commodity. We are talking about mangoes here. There are 6 mangoes with you. Then you had no mango. Here you are not having any mango, so there is no utility, there is no satisfaction, nothing. Right? When you had first mango, you got a satisfaction of 10 utils. हम किस में नाप रहे हैं इसको? यूटिल्स में नाप रहे हैं। यूटिल्स किसको नाप रहे हैं? यूटिलिटी को यूटिल्स में नाप रहे हैं। तो पहला मैंगो खाने में आपको 10 यूटिल्स का मजा आया। दूसरा मैंगो खाने में आपको 17 यूटिल्स का मजा आया। थर्ड मैंगो खाने में आपको 21 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ मैंगो यू हैड अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 22 यूटिल्स। फिफ्थ मैंगो में भी अगेन आपको 22 कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे एक समान है, चेंज नहीं आया। और सिक्स्थ में आप देखोगे कि आपका यूटिलिटी क्या होने लगी? घटने लगी। तो ये तो है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी मैंने आपको अभी बताया था क्या कहती है डेफिनेशन के हिसाब से? टोटल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, whatever the total utility you get from the total commodity consumed, right? अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब आपने एक कमोडिटी खाई तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। यहाँ तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ तो आप पूरे के पूरे, यहाँ अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे आप 1 से 2 में गए, तो यहाँ पे आप 2 मैंगो के बारे में बता रहे हो। यहाँ से आप फिर चले गए तो यहाँ पे आप 3 मैंगो के बारे में बता रहे हो। यहाँ से आप चले गए तो 4 मैंगो के बारे में बता रहे हो। तो ये टोटल यूटिलिटी है। इसमें 17 में पिछला भी जुड़ा हुआ है, 21 में 17 भी जुड़ा हुआ है, 22 में 21 भी जुड़ा हुआ है। इट इज लाइक दिस। ठीक है, बल्कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये किसके बारे में बात करती है? एडिशनल के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज टॉक अबाउट एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट के बारे में बात करती है। ठीक है, तो हमने जो पहला मैंगो खाया ही नहीं, तो आपको कोई ना टोटल यूटिलिटी है ना मार्जिनल यूटिलिटी है। नाउ वी हैड फर्स्ट मैंगो। तो पहले मैंगो से आपको कितना वो मिला सेटिस्फैक्शन? 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पे 1 ही मैंगो की बात है, तो 1। जब आप फर्स्ट से सेकंड मैंगो पे गए तो कितना चेंज आया? आपके कितने मैंगो का चेंज आया? 1 मैंगो का चेंज आया। तो 1 मैंगो चेंज होने में इसका मतलब ये है कि 17 में 10 भी जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 17 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा? 7। मतलब आपको एक अकेला दूसरे मैंगो से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 7 का।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 में 17 भी जुड़ा हुआ है तो हम 21 में से 17 को निकाल देंगे, तो कितना मिलेगा हमको 4, राइट। सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ मैंगो, इसमें फोर्थ में पीछे के सारे 3 जुड़े हुए हैं तो हमें 22 में से पीछे वाले माइनस करने पड़ेंगे, 22 माइनस 21 यू गेट 1, राइट। सेम वे 22 माइनस 22, यहाँ पे यूटिलिटी कितनी मिली आपको 0, राइट। एंड देन आपने 6 मैंगो में आए तो टोटल यूटिलिटी 19 हो चुकी थी, तो प्रीवियस को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी किस में चलेगी, माइनस में चली गई। So you can understand from here, just try to understand. I'll just repeat it once again. Right? So we are basically reading the concept of total utility. Utility, I told you, the utility is the satisfaction that you get from a commodity. Right, children? Now, here basically we are talking about the commodity. The commodity we have is mango. We will be consuming mango, and we have how many mangoes? We have 6 mangoes here. Right, now 6 mangoes we are having, and when we consume the first mango, in the first part we haven't consumed any mango, so we are not getting any satisfaction. Obviously हमने कोई mango consume नहीं किया तो हमको satisfaction भी नहीं मिलेगा, तो ना हमको total utility मिली ना marginal utility मिली। फर्स्ट मैंगो खाया तो कितना का मजा आया, 10 यूटिल्स का मजा आया। हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट मैंगो खाया तो 10 का मजा आया, तो 1 से कितना मिला, मार्जिनल यूटिलिटी 10 की। दूसरा मैंगो खाने पे हमको कितनी यूटिलिटी मिली, पहला जोड़ दिया इसमें तो 17 मिली, तो मतलब सिर्फ अकेले दूसरे से कितनी मिली, 17 माइनस 10, 7 का मजा आया। फिर थर्ड खाने पे 21 टोटल यूटिलिटी है, 21 में से पुराना 17 निकाल देंगे तो 4 आपकी थर्ड, सिर्फ अकेली थर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेम वे 22 माइनस 21 आपको 01 का यूटिलिटी मिली, एंड 22 माइनस 22 यहाँ पे यूटिलिटी अभी खत्म हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, यूटिलिटी नेगेटिव में चलेगी। तो कहने का मतलब ऑल टुगेदर क्या है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि टोटल यूटिलिटी शुरू में बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीज शुरू से लेकर के आखिरी तक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नाउ विल रब दिस। लेट्स टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं। यूटिलिटी और satisfaction from one additional commodity. Whenever additional commodity is consumed, उससे जो आपको satisfaction मिलेगा वो क्या होगा, marginal utility होगा, right? The formula for marginal utility mu is equals to TUN minus TUN minus 1. So this is a formula, right? So always remember, जब भी marginal के बारे में बात करेंगे तो that means we are talking about what? We are talking about additional unit, only single unit, only additional unit we are talking about. So marginal utility की properties क्या होती है? Marginal utility always keeps on falling, keeps on falling. मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती रहती है, गिरती रहती है, ठीक है, फॉल करती रहती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ टोटल यूटिलिटी। दूसरी खास बात, मार्जिनल यूटिलिटी becomes 0 and then negative. तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है, वो इतना गिर जाती है कि 0 बनने के बाद नेगेटिव भी हो जाती है, राइट चिल्ड्रन? सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। नाउ विल मूव मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। What
what does diminishing marginal utility says? Diminishing marginal utility क्या बोलती है? Diminishing marginal utility बोलती है as a consumer consumes more and more of a commodity, the MU from every additional unit tends to decline, right? So what he is saying, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ये बात है कि वो बोल रहे हैं जैसे जैसे आप एडिशनल कमोडिटीज खाई जाएंगे, हम यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। हमने मैंगोज का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम टीयू कर रहे हैं, यहाँ पे एमयू कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट मैंगो जब 0 मैंगो खाया ही नहीं मैंगो, तो कोई यूटिलिटी है ही नहीं, मजा ही नहीं है कोई। फर्स्ट मैंगो खाया तो हमको यहाँ पे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? यहाँ पे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पे भी पहले मैंगो से कितने का मिला? 10 का मिला। दूसरा मैंगो खाने पे हमको कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? वी गॉट सेटिस्फैक्शन ऑफ 17। तो 17 माइनस 10, यहाँ पे भी कितने का सेटिस्फैक्शन आया? 7 का सेटिस्फैक्शन आया। थर्ड मैंगो खाने पे हमको कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? 21। सो 21 माइनस 17 गिव्स यू 4, ठीक है। और फोर्थ मैंगो खाने पे 22, so 21 minus 22 gives you minus 1, gives you what? 21 minus 20 gives you 1. So what we are noticing here? We are noticing this is what, see, this is what the definition is saying. ये जो आपका marginal utility decline हो रहा है ना, declining MU, declining MU जो है यही आपका क्या? diminishing marginal utility है। What they are saying? Let's go to the definition first. The definition says that as a consumer consumes more and more of a commodity, the MU from every additional unit tends to decline. Right? अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे ज्यादा मैंगो हम खा रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन गिरती हुई स्पीड में बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी इस तरीके से बढ़ रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तो इसी को हम डीएमयू कहते हैं या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सो व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, द सैटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? सैटिस्फैक्शन, द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? आपको कोल्ड ड्रिंक बॉटल दी, वी गेव यू, वी प्रोवाइडेड यू विद अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, वी गेव यू 3 bottles of cold drink. When you had first bottle, you were very happy and you were very satisfied. आपने पहला मैंगो कोल्ड ड्रिंक पिया तो आप बहुत खुश हुए, आपको बोले कि यार मजा ही आ गया पीने का। तो हमने क्या किया? तुरंत आपको दोबारा दूसरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पिला दी, सेम फ्लेवर की, सेम सपोज पेप्सी पिला दी। तो पेप्सी पीने के बाद, दूसरी बॉटल पेप्सी पीने के बाद आपका क्या होगा? आपको मजा आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको फर्स्ट टाइम में आया था। क्यों? क्योंकि आपका पेट पहले ही भर चुका है, आपको काफी सेटिस्फैक्शन पहले से ही मिल गया था, ठीक है। फिर हम आपको तुरंत बोलेंगे तीसरी बॉटल पीने के लिए भी बोलेंगे, तो अगर आप पियोगे भी तो आपसे पी भी नहीं जाएगी और आपको उतना बिल्कुल मजा नहीं आएगा उसे पीने में। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या हो चुका है? पीक तक पहुंच चुका है, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो आपकी जो इससे मजा है, जो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने से जो मजा आता जा रहा है, वो क्या हो रहा है? घट रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। नाउ दिस इज, अगर आपको मैंगो नहीं लेना है तो आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे। इफ यू डोंट वांट मैंगो, सो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो यहाँ पे। आपने जब कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, आपको कोई मजा नहीं आया। आपने पहली कोल्ड ड्रिंक पी तो आपको बहुत मजा आया 10 का, आप दूसरी कोल्ड ड्रिंक पी तो आपको 17 का मजा आया, तीसरी और चौथी की। तो जैसे जैसे आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते जाएंगे, आपका मजा क्या होता जाएगा? डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल unit, that is marginal utility, goes on decreasing, right? This is illustrated in the last example that we did, right? Marginal utility obtained from consumption of the first mango is
greater than the fourth mango. We can see, we can check out it here. So this is what known as marginal utility. That this tendency of decreasing the marginal utility, ये जो decreasing, declining marginal utility की जो tendency है, marginal utility is what? It keeps on falling, falling, falling and falling. This tendency of marginal utility with a successive increase in the consumption. आप जैसे जैसे consumption increase करेंगे, वैसे वैसे हर additional unit से आपका जो interest है, आपका जो मजा है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग एमई बोलते हैं, या तो फिर हम क्या बोलते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बिकॉज आप जैसे जैसे किसी चीज को खाते जाते हो एक के बाद एक खाना है, यहाँ पे आप ब्रेक नहीं दे सकते, या आपको टेस्ट चेंज नहीं कर सकते. अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप उसके बाद जूस में नहीं जा सकते, उसके बाद नारियल पानी नहीं पियोगे, आपको एक ही चीज को कंज्यूम करना है. तो आप जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते जाओगे, हर एक के बाद एक, उतना आपका उससे मजा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. और इसी को इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ DMU. I hope children you have understood this, and children will be doing another further topic in the next video. Till then, stay at home, keep doing your notes.